بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دل مستر ناول کی آج 5ویں ایپیسوڈ میں بنا رہی ہوں، 9ویں اور 10ویں ایپیسوڈ کو ملا کے۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کی ایپیسوڈ ماضی سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ کچھ دن سے نبیہ نوٹ کر رہی تھی کہ الہان کا رویہ اس کے ساتھ کافی رسمی سا ہو گیا ہے۔ پہلے جس طرح وہ آفس جا کر ہر گھنٹے 2 گھنٹے بعد مس یو لو یو کے ٹیکسٹ بھیجتا تھا، اب کئی دن سے یہ سلسلہ بند کر دیا تھا، اور یہی نہیں بلکہ گھر آ کر بھی وہ رسمی سلام دعا کے بعد اسٹڈی چلا جاتا اور وہاں سے رات کو سونے کے لیے نکلتا تھا۔ نبیہ 1-2 بار باتوں باتوں میں اس سے پوچھ بھی چکی تھی، پر وہ آفس میں کام کا برڈن بتا کر جان چھڑوا لیتا تھا۔ آج نبیہ کا ارادہ ہاشم عباسی سے ملنے ہاسپٹل جانے کا تھا، اسی لیے وہ چینج کرنے کے لیے ڈریسنگ روم میں تھی۔ جب الہان کمرے میں آیا، وہ کوئی فائل اسٹڈی میں بھول گیا تھا، اسے ہی لینے آیا تھا کہ ٹیبل پر پڑا نبیہ کا سیل بجا۔ الہان اسٹڈی جانا ترک کرتا بیڈ کی طرف آیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑا نبیہ کا سیل اٹھایا، جس کی اسکرین پر لکھا نام دیکھ کر اس کے ماتھے پر سلوٹیں ابھری۔ وہ کال اوکے کرنے ہی والا تھا جب کال آنا بند ہو گئی۔ اس نے سیل واپس رکھا اور اسٹڈی میں چلا گیا۔ اپنی مطلوبہ فائل لے کر وہ واپس کمرے میں آیا تو نبیہ آئینے کے سامنے کھڑی لپسٹک لگا رہی تھی۔ کہیں جا رہی ہو؟ الہان نے فائل الٹ پلٹ کرتے سرسری سا پوچھا۔ الہان کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ تم کب آئے؟ ابھی آیا تھا، یہ فائل لینی تھی۔ تم کہیں جا رہی ہو؟ ہوں، بابا سے ملے کافی دن ہو گئے، ان سے ہی ملنے جا رہی ہوں۔ اوکے۔ الہان نے ایک اچٹتی نظر سے نبیہ کو دیکھا، جو لپسٹک کے بعد اب گالوں پر بلش آن لگا رہی تھی۔ تیاری تو باپ سے ملنے کی نہیں بلکہ کسی خاص شخص سے ملنے کی جا رہی ہے، وہ دل میں سوچتا سر جھٹک کر نبیہ کو بائے کہہ کر کمرے سے نکل گیا۔ کہیں کچھ غلط تو ہے، اس کا دماغ اسے خبردار کر رہا تھا۔ شک کے بیج کی جڑیں پھیل کر اب دل تک پہنچنے والی تھی۔ اس تو ڈاڈا دکھ نہ کوئی پیار نہ بچھڑے، کسے دا یار نہ بچھڑے، کسے دا یار نہ بچھڑے۔ نصرت فتح علی خان کی خوبصورت آواز میں بجتے میوزک کو انجوائے کرتی وہ ڈرائیونگ کر رہی تھی جب پاؤچ میں پڑا اس کا سیل بجا۔ نبیہ نے ایک ہاتھ سے اسٹیئرنگ کو تھام کر دوسرے سے سیل پاؤچ سے نکالا۔ اوہ، محتشم ابراہیم! اس کے ہونٹوں سے سرگوشی برآمد ہوئی۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ سلو کی اور ہاتھ بڑھا کر میوزک بند کیا۔ ہیلو، السلام علیکم۔ کال اوکے کر کے سیل کان سے لگا کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں مسز ملک؟ دوسری طرف سے فریش آواز میں پوچھا گیا۔ فائن، آپ کیسے ہیں محتشم ابراہیم؟ محتشم اس کے محتشم ابراہیم کہنے پر مسکرا دیا۔ یہ واحد ہستی تھی جو اسے صرف محتشم کہنے کی بجائے محتشم ابراہیم کہہ کر مخاطب کرتی تھی۔ اللہ کا شکر ہے، سب فٹ فاٹ، بڑے خوش لگ رہے ہیں، خیریت؟ اب کہ نبیہ اس کی فریش مسکراتی آواز پر ٹھٹکی۔ جی بالکل صحیح پہچانا، میں واقعی بہت خوش ہوں، وہ مسکرایا۔ وجہ؟ نبیہ بھویں اچکا کر بولی۔ وجہ میں سوچ رہا ہوں آپ سے مل کر بتاؤں، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ محتشم نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ کہیں آپ کرپشن کے کیس سے موجزانہ طور پر بری تو نہیں ہوگے؟ نبیہ نے مسکراتے ہوئے اندازہ لگایا۔ تکا ٹھیک لگا لیتی ہیں آپ۔ بالکل یہی وجہ ہے میری خوشی کی، لیکن اس کے علاوہ ملک سلطان کے کیس پر بھی مجھے آپ سے کچھ ڈسکس کرنا ہے۔ مسز ملک، کیا ہم آج ہی مل سکتے ہیں؟ کیونکہ میں کل لاہور واپس چلا جاؤں گا اور فون پر اتنی لمبی بات نہیں ہو سکتی۔ شیور، میں ابھی بابا سے ملنے ہاسپٹل جا رہی ہوں، لنچ ساتھ کرتے ہیں، وہ خوشگوار موڈ میں بولی۔ اوکے ڈن۔ محتشم نے اسے ریسٹورانٹ کا نام بتایا۔ اوکے، میں 2 بجے تک پہنچ جاؤں گی۔ تھینکس، آئی ول بی ویٹنگ دیئر، وہ مسکرا کر بولا۔ خدا حافظ۔ نبیہ نے آنے کا بتا کر کال بند کی اور میوزک پھر سے آن کر کے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ اب وہ میوزک کے ساتھ خود بھی گنگناتی ہوئی اسٹیئرنگ پر انگلیاں بجا رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات اس کے پہلے سے زیادہ فریش موڈ کا پتہ دے رہے تھے۔ 4 ماہ تک کٹھن حالات کا سامنا کرتے ہوئے بالآخر محتشم خود پر لگے کرپشن کے کیس کو جھوٹ ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اس سارے پروسیس میں ابصار علی نے جس طرح سے اسے ہیلپ آؤٹ کیا تھا، محتشم ان کا احسان مند تھا۔ ابصار علی کے علاوہ اور بھی بہت سے سینئر آفیسرز نے
اس کیس میں اسے مکمل سپورٹ دی تھی اور ان سب کی مدد اور محتشم کی ایمانداری کا نتیجہ ہی تھا کہ وہ انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے دائر کردہ پیسے کی ہیرا پھیری کے کیس سے باعزت بری ہو چکا تھا۔ ان 4-5 ماہ میں محتشم صرف خود کو اس جھوٹے کیس سے چھڑوانے کی تگ و دو میں لگا ہوا تھا، مگر اس کیس کے پیچھے کن عناصر کا ہاتھ تھا یا پھر کس کو اس سے ذاتی دشمنی تھی کہ جس نے اس پر یہ کیس کروایا تھا، وہ فی الحال اس سے بے خبر تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بہت پاورفل اور ہیرا پھیری کرنے کا ماہر تھا، کیونکہ جس طرح سے بھرپور ثبوتوں کے ساتھ یہ کیس کیا گیا تھا وہ بہت سولڈ ثبوت تھے۔ شروع میں تو محتشم ان ثبوتوں کو دیکھ کر خود بھی چکرا گیا تھا کہ آیا کیا وہ واقعی یہ سب کر چکا ہے، لیکن پھر اپنے کولیگز اور سینئرز کی مکمل سپورٹ نے اسے باور کروایا کہ وہ اکیلا نہیں ہے، سب سینئرز اس کے ساتھ ہیں جو اس پر یقین رکھتے ہیں، جنہیں محتشم ابراہیم کے سچا ہونے پر یقین ہے، جو یہ بات مانتے ہیں کہ محتشم ابراہیم اپنی جاب کے ساتھ کبھی فراڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اسی حوصلے نے اس میں خود کو سچ ثابت کرنے کی ہمت دلائی تھی اور وہ کامیاب بھی رہا تھا، مگر اس سارے عمل میں وہ ان دشمن عناصر تک نہیں پہنچ پایا تھا، مگر اب ہر طرح سے بری ہو کر وہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ جلد ہی ان کا پتہ لگا کر رہے گا۔ نبیہہ ہاشم عباسی سے مل کر محتشم کے بتائے گئے ریسٹورنٹ جا رہی تھی جب اسے الہان کی کال آئی۔ جی، نبیہہ نے کال اوکے کی۔ کہاں ہو؟ بتایا تو تھا بابا سے ملنے جاؤں گی۔ وہی ہو، میں سوچ رہا تھا آج لنچ ساتھ کرتے ہیں، کافی دن ہو گئے ایک ساتھ باہر لنچ کیے۔ الہان نے اسٹیئرنگ پر مضبوطی سے ہاتھ جما کر نارمل لہجے میں کہا۔ آج نہیں الہان، کل۔ آج مجھے اپنی فرینڈ سے ملنا ہے اور لنچ کا پروگرام بھی اسی کے ساتھ ڈن ہے۔ نبیہہ بنا رکے ایک ہی سانس میں بولی۔ کون سی فرینڈ؟ الہان نے بمشکل لہجے کو سرسری سا بنا کر پوچھا۔ وہ میرے ساتھ تھی الہان، اخبار کے دفتر میں، جب میں جاب کرتی تھی تب، وہ گھبرا کر بولی۔ الہان اس کی گھبراہٹ نوٹ کر چکا تھا۔ اوکے فائن، ہم کل چلے جائیں گے۔ ہیو فن ود یور فرینڈ، وہ کن پٹی مسلتا مسکرا کر بولا۔ تھینکس مسٹر ملک، میں فون رکھتی ہوں، ڈرائیونگ کر رہی ہوں۔ اوکے بائے۔ الہان نے بائے کر کے کال کاٹ دی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھاتا عین نبیہہ کی گاڑی کے پیچھے لے آیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ نبیہہ اپنی کس فرینڈ سے ملنے جا رہی ہے۔ دوسری طرف نبیہہ نے کال بند کر کے سیل واپس پاؤچ میں رکھا۔ مجھے الہان سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا، وہ اپنے جھوٹ پر گلٹی فیل کرتی بڑبڑائی اور گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ نبیہہ جب ریسٹورنٹ پہنچی تو محتشم وہاں پہلے سے موجود تھا۔ نبیہہ کو اپنی طرف آتے دیکھ کر محتشم اپنی بے ہنگم دھڑکنوں کو کنٹرول کرتا کھڑا ہوا۔ السلام علیکم، نبیہہ نے مسکرا کر سلام کیا۔ محتشم نے سر ہلا کر جواب دیا۔ ہیو اے سیٹ پلیز، وہ مسکرایا۔ نبیہہ چیئر گھسیٹتی بیٹھ گئی۔ انٹرنس پر موجود الہان ملک نے یہ منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا اور نبیہہ اور اس کی فرینڈ پر ایک خون آلود نگاہ ڈالتا واپس مڑ گیا۔ شک کے بیج کی پھیلتی جڑوں نے اس کے دل کو چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ جی تو محتشم ابراہیم، پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ خود پر لگے جھوٹے کیس سے بری ہونے میں کامیاب ہو گئے، جو ہمارے ملک میں بالکل ایک ان ایکسپیکٹڈ سا واقعہ معلوم ہوتا ہے۔ یہاں بے قصور کو سزا اور مجرم کو باعزت بری کر دیا جاتا ہے۔ وہ بات کر کے ہلکا سا مسکرائی۔ کہیں آپ کے کہنے کا یہ مقصد تو نہیں کہ میں مجرم تھا؟ وہ آنکھیں سکیڑ کر مشکوک سا بولا۔ اس کے ایکسپریشنز پر نبیہہ کھل کر ہنسی۔ نہیں، بالکل بھی نہیں، میں جانتی ہوں آپ بے قصور تھے، وہ ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کنٹرول کرتی بولی۔ محتشم نے اس کا گلابی کھلتا چہرہ نظروں کے رستے دل میں اتارا اور کمپوز ہوتا مسکرا دیا۔ تھینکس فار یور ٹرسٹ، مینشن ناٹ، میں جانتی ہوں آپ بہت شریف، سلجھے ہوئے اور دیانتدار آفیسر ہیں۔ میری اتنی ساری خوبیوں کا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ مسکراہٹ دباتا شرارت سے بولا۔ آپ صفدر ابراہیم کے بیٹے، ہاشم عباسی کے کزن، رائنا عباسی کے بھائی اور نبیہہ عباسی کے دور کے رشتہ دار ہیں، اس لیے سب جانتی ہوں، وہ جواباً شرارتی مسکراہٹ چہرے پر لا کر بولی تھی۔ اس کی تفصیلی وضاحت پر محتشم کھل کر مسکرا دیا۔ اٹس بگ آنر فار می محترمہ نبیہہ عباسی صاحبہ کہ آپ مجھے ان اچھی خوبیوں سمیت جانتی ہیں۔ وہ مسکرائی۔ اچھا، وہ ملک سلطان کے کیس کے بارے میں کیا ڈسکس کرنا تھا آپ کو؟ نبیہہ یاد آنے پر فوراً بولی۔
जी, मुझे अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू कुछ सबूत मिले हैं, वही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले लंच हो जाए। मोहसिम ने वेटर को आते देखकर कहा। जी, नबीहा ने इस बात में सर हिलाया। वेटर इनके बताए गए मेन्यू के मुताबिक लंच टेबल पर सर्व करके प्रोफेशनल मुस्कुराहट चेहरे पर सजाकर इन दोनों को देखता एनीथिंग मोर पूछकर वापस मुड़ गया। 10-15 मिनट बाद मोहसिम ने लंच फिनिश करके नैपकिन से होंठ थपथपाए और नबीहा की तरफ मुतवज्जो हुआ जो पानी पी रही थी। नबीहा ने पानी पीकर गिलास वापस रखा और मोहसिम की तरफ देखा जो उसे ही देख रहा था। उसे देखते पाकर नबीहा ने हल्की सी मुस्कुराहट उछाली। जवाबन मोहसिम भी मुस्कुरा दिया। अब बात हो जाए। जी बिल्कुल, वो घड़ी देखते बोली। मैं अपने केस में इन्वॉल्व था, इसलिए पर्सनली मलक सुल्तान के केस को हैंड ओवर नहीं कर सका। मेरा एक दोस्त है शहजाद, इंटेलिजेंस एजेंसी में, उसी के ज़ुम्मे ये काम लगाया था मैंने। नबिया सर हिलाती बहुत गौर से मोहसिम की बात सुन रही थी। असल में मिस नबिया टैक्स की अदम अदायगी, इलीगल एक्सपोर्ट और इसी किस्म की चंद और हेरा फेरियों के अलावा और भी बहुत से पॉइंट सामने आए हैं इस केस में। मतलब, नबिया कोहनियों को टेबल पर टिकाकर हाथों के प्याले में मुंह दिए राजदारी से बोली। मतलब, नबिया वो हिचकिचाया। नबिया, आप अपनी मदर की डेथ से रिलेटेड कुछ जानती हैं? आई मीन टू से, क्या वाकई उन्होंने सुसाइड ही की थी? मोहसिम की बात पर नबिया के चेहरे पर तकलीफ दे तासुरात नमूदार हुए। मेरा मतलब आपको हरगिज़ हर्ट करना नहीं था नबिया, मैं तो बस। जी, उन्होंने सुसाइड ही की थी। नबिया उसकी बात काटकर सपाट सी बोली। हो, मोहसिम ने सर हिलाया। क्या मैं इसके अलावा कुछ और भी पूछ सकता हूँ? वो उसके चेहरे के पथरीले तासुरात देखकर मुहतात सा बोला। अगर इस पूछगिछ का तल्लक मलक सुल्तान के केस से है तो आप पूछ सकते हैं, वरना मेरे 10 साल पुराने जख्म मत कुरेदें। वो अक्खड़ लहजे में कहती हुई ज़रा भी कुछ देर पहले वाली खुश मिजाज नबिया नहीं लग रही थी। मोहतशम ने एक नज़र उसके तने चेहरे पर डालकर गला खनकारा। सुंबल अब्बासी और मलक सुल्तान का रिलेशनशिप कैसा था? मतलब, हाशिम भाई तो दोस्त थे ना मलक सुल्तान के, इसलिए घर भी काफ़ी आना जाना होता होगा। वो मुहतात होकर बोला। मैं तब छोटी थी मुहतशम इब्राहिम, इतनी बारीक बीनी से किसी भी रिलेशनशिप को जज नहीं कर सकती थी, इसलिए बज़ाहिर तो सब ठीक ही था। हो, थैंक्स। मुहतशम मुस्कुराया। मुझे यही पूछना था आपसे। आप कह रहे थे जो पॉइंट्स मैंने आपको दिए उनके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं इस केस में, तो क्या मैं पूछ सकती हूँ वो पॉइंट्स क्या हैं? वो तफ्तीशी अंदाज में मोहतशम को देखती बोली। असल में मिसेस मलक, मेरे दोस्त ने मलक सुल्तान का पुराना खाता सर्च आउट किया है, जिसके मुताबिक माजी में मलक सुल्तान पर एक दो। मोहतशम ने रुक कर नबिया को देखा। नबिया आंखों के दरमियान बल डाले उसे ही देख रही थी। मलक सुल्तान पर कुछ रेप केसेस भी चले थे माजी में, जो किसी भी नतीजे के बगैर बंद कर दिए गए थे। ओके थैंक्स, मैं चलती हूँ। नबिया अपना पाउच उठाती खड़ी हुई। बेहतर होगा मुहतशम इब्राहिम कि आप मुझे इन्वॉल्व किए बगैर ही इस केस को हैंडल करें। मैं अल्हान से झूठ बोलकर आपसे नहीं मिल सकती, और इस केस को आपसे डिस्कस करते ही मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरा नाम बीच में मत आए, क्योंकि मैं अब नबिया अब्बासी नहीं बल्कि मिसेस नबिया अल्हान मलिक बन चुकी हूँ। लिहाजा इस केस को लेकर मुझे अपना घर ख़राब नहीं करना है। होप्स हो कि आप समझ गए होंगे। खुदा हाफिज़। वो तने तासुरात से सारी बात कहती एग्ज़िट की तरफ बढ़ गई। मोहतशम ने उसकी नज़रों से ओझल होती पुश्त को देखा और सर झटक कर सेल और कीज़ उठाता बाहर निकल गया। वो जान गया था नबिया अब्बासी एकदम से पहले वाली नक चढ़ी नबिया अब्बासी क्यों बन गई थी। वो बदकिरदार ही थी हाशिम। आपकी मदर ने सुसाइड ही की थी ना? उसकी खुदकुशी साबित करती है वो बदकिरदार थी। सुंबल अब्बासी और मलक सुल्तान का रिलेशनशिप कैसा था? एक बदकिरदार औरत के लिए क्यों रोग ले रहे हो हाशिम? मलक सुल्तान पर माजी में एक दो रेप केसेस भी चले थे। वो बदकिरदार थी हाशिम। मलक सुल्तान की माजी की आवाज़ और मोहतशम इब्राहिम के अभी पूछे गए सवाल नबिहा के इर्द गिर्द गूंज रहे थे। वो सर स्टेयरिंग पर गिराए कानों पर हाथ रखे हुए थी, मगर ये आवाज़ें फिर भी इसके कानों तक पहुंचकर उसे अजियत दे रही थी। वो बहुत मुश्किल से रेस्टोरेंट से उठकर गाड़ी तक आई थी, और अब भी उसकी हालत अच्छी मालूम नहीं हो रही थी, और ना ही वो ड्राइव करने की पोजीशन में थी। मोहतशम इब्राहिम ने ऐसा क्यों कहा? मलक सुल्तान का मम्मी के साथ रिलेशनशिप?
मलक सुल्तान पर रेप के केसेस, मलक सुल्तान का बाबा को बार बार बावर करवाना कि सुंबल अब्बासी बदकिरदार औरत थी। क्या है ये सब? मोहतशम ने क्यों पूछा मुझसे मम्मी का? क्या मलक सुल्तान और मम्मी का कोई रिलेशनशिप था? उसके दिमाग में सवाल उभरा। नहीं, मेरी माँ बदकिरदार नहीं थी मेरी माँ बदकिरदार, और ना ही उसका मलक सुल्तान से कोई रिलेशनशिप था। वो कानों पर हाथ रखे पूरी ताकत से चिल्लाई थी। उसकी आवाज़ गाड़ी के बंद शीशों से पलटकर गाड़ी में गूंज उठी थी। अगर अगर मेरी माँ के केस में भी तुम मुलव्वस हुए मलक सुल्तान, तो मैं अपने हाथों से तुम्हें कत्ल करूंगी। जलील कमीने इंसान, अपने हाथों से मारूंगी मैं तुम्हें। वो सर स्टेयरिंग पर जमाए बुलंद आवाज से रोने लगी, इस बात से बेखबर कि अनकरीब इसकी अपनी ज़ात पर भी बदकिरदारी का भयानक दबा लगने वाला है। हाल अल्हान ने जल्दी से गाड़ी को ब्रेक लगाई और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। मोबाइल की रोशनी में वो आगे बढ़ता गाड़ी से टकराने वाले बंदे को देख रहा था। काफ़ी आगे जाकर उसे फुटपाथ के पास गिरे वजूद का एहसास हुआ। वो भागने के अंदाज में उस वजूद तक पहुंचा था। मुहतशम का वजूद सड़क पर औंधे मुंह गिरा हुआ था। बारिश के पानी के साथ ही उसके वजूद से निकलता खून भी तेजी से इर्द गिर्द फैलता जा रहा था। अल्हान ने मोबाइल की रोशनी उसकी पुश्त पर डाली और सड़क पर फैलते खून से घबराकर वो जल्दी से घुटनों के बल बैठकर मुहतशम के वजूद को सीधा करने लगा। बारिश के कतरे उसके मुंह पर गिरकर बार बार आंखों को बंद करने पर मजबूर कर रहे थे। अल्हान ने पूरी ताकत से मुहतशम के वजूद को सीधा किया था। लंबे लंबे सांस लेकर उसने जैसे ही रोशनी उसके वजूद के चेहरे पर डाली तो खून में लथपथ उस चेहरे को देखकर उसके मुंह से सरगोशी बरामद हुई। मुहतशम इब्राहिम, जिन लोगों के साथ हमारे दिल का रिश्ता हो उनके साथ हमारे वजदान का ताल्लुक होता है। उनकी परेशानी की खबर सुनकर दिल को बेचैनी के पर लग जाते हैं। उनके सब दुख सुख हमारे दिलों पर उतरते हैं। और नबीहा और मुहतशम का रिश्ता भी दिल का था, सो इसीलिए वो मुहतशम के लिए फिक्रमंद और बेचैन थी। वो दिल की बेकाबू होती धड़कन से घबराकर उठी और लाउंज का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। ज़ोरदार बारिश, तेज़ हवा बिल्कुल किसी तूफान की आमद की खबर दे रही थी। वो सीने पर हाथ फेरती वहीं पिलर से टेक लगाकर खड़ी हो गई। मेरे मालिक, ये बारिश रुक जाए प्लीज़, मुझे बहुत डर लग रहा है अल्लाह जी, प्लीज़ ये तूफ़ान थम जाए। वो बेचैनी से चक्कर काटती टहलने लगी। मोहतशम को अपने ज़ुबान में रखना मेरे मालिक, वो जहाँ कहीं भी है खैरियत से हो। वो बेबसी से दुआ मांगती अपने आंसू पोंछने लगी। क्या हुआ बीबी साहब? गेट कीपर उसे बाहर निकलकर टहलते देखकर उसके पास आया। वो खान, मोहतशम अभी तक नहीं आए। वो बेचारगी की इंतहा पर पहुंचती ज़रा सा आसरा पाकर खान से ही दिल की बेचैनी शेयर करने लगी। बीबी साहब, मौसम बहुत ख़राब है, साहब ऑफिस में ही रुक गया होगा। तूफान में आना भी तो मुश्किल था। ऑफिस से तो कब के निकल चुके हैं वो, नबिया बेचैनी से बोली। फिर आप साहब को फ़ोन मिलाकर पूछो बीबी साहब, वो मुअद्दब सा बोला। फ़ोन बंद है, शायद बारिश की वजह से सिग्नल प्रॉब्लम है। मैं खुद जाकर देखा हूँ रास्ते में। खान ने अपनी बीबी साहब के चेहरे पर फैली परेशानी देखकर कहा। नबिया ने इसकी मुखलसी पर बेदिल सा मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया। नहीं खान, तुम कहाँ जाओगे उन्हें देखने? ऑफिस को कौन सा एक रास्ता जाता है, मैं फिर से फ़ोन करके देखती हूँ। जी अच्छा। खान सर हिलाता वापस गेट की तरफ बढ़ गया। नबिया मुहतशम का नंबर मिलाकर सेल कान से लगाती वापस लाउंज में आ गई। माजी अल्हान सोच भी नहीं सकता था नबिया उसे झूठ बोलेगी, उससे चीट करेगी। उसे रह रहकर नबिया अब्बासी पर गुस्सा आ रहा था। उसका दिल चाह रहा था वो उसे ख़त्म कर डाले, जो उसकी बीवी होकर अपने एक्स ही एफ के साथ रंगरलियां मनाती फिर रही थी। वो नबिया और मुहतशम को एक साथ देकर वापस अपने ऑफिस आ गया था और अब ऑफिस की चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालकर खुद को कूल कर रहा था। मलिक साहब, आपके लिए एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर लेकर आया हूँ, अहमद सयाल ने चेयर पर झूलते मलिक सुल्तान से कहा। मलिक सुल्तान पहले ही मुहतशम के बाइज्जत बरी होने पर परेशान बैठे थे। 2 दिन पहले ही उस पर लगे तमाम इल्ज़ामात झूठे करार देकर उसे बरी कर दिया गया था, इसलिए कोई भी जवाब दिए बगैर झूलते रहे। तबीयत ठीक है मलिक साहब? सयाल ने एहतियातन पूछा। हूँ, बोलो क्या खबर लाए हो? मलिक सुल्तान उसी तरह झूलते बोले। अच्छी खबर यह है कि आज अल्हान साहब ने
अपनी आंखों से नबिया मैडम और मोहतशम इब्राहिम को होटल में एक साथ लंच करते देख लिया है, और बुरी खबर यह है कि वो दोनों वहाँ आपके केस को ही डिस्कस करने के लिए मिले थे। और मलक साहब, मुझे लगता है उनके हाथ और भी बहुत कुछ लग चुका है। ये मोहतशम उल्लू का पट्टा है, पूरा आराम से नहीं बैठेगा। मैंने बताया था आपको, वो अपने किसी शहजाद नामी दोस्त से मदद ले रहा है इस केस में, और इंटेलिजेंस वाले तो पहले ही तैयार बैठे होते हैं बात की खाल उतारने में। अहमद सियाल मलक सुल्तान के मूड के पेश नज़र जल्दी जल्दी बोला, मरवा दो उसे। मरवा दो? अहमद सियाल ने मलक साहब की बात को दोहराया। हूँ, वो एजेंसी का बंदा है मलक साहब, मरवाना आसान नहीं, और फिर इससे हमारे लिए नई मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी मलक साहब। मेरे ख्याल से अभी आप नबिया मैडम को अल्हान साहब की ज़िंदगी से बाहर करें, फिर इस मोहतशम के बच्चे को उसके दोस्त समेत मैं देख लूँगा। ठीक है, 2 दिन तक तस्वीरें बनवाओ, बिल्कुल वैसी ही जैसी सुंबल अब्बासी की बनवाई थी, मगर ख्याल रहे कि वो असली थी और ये नकली होंगी, मगर फिर भी ये असली ही दिखनी चाहिए। आप फिक्र ही ना करें मलक साहब, पहले कभी आपको शिकायत का मौका मिला है जो अब दूंगा। आप रिलैक्स हो जाएं, 2 दिन तक बिल्कुल असली तस्वीरें आपके टेबल पर होंगी। गुड। मलक साहब अहमद सियाल की चालाकी व फुर्ती पर मुस्कुरा दिए। लोहा गर्म है, इसलिए अगली चोट भी जल्दी पड़ जाए तो ठीक रहेगा। मैं अब मज़ीद इस लड़की को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो हुक्म मलक साहब। अहमद सियाल दिल पर हाथ रखकर झुकता बाहर निकल गया। नबिया बहुत मुश्किल से खुद को संभालती मलक हाउस पहुंची थी। दिल में अजीब सी वहशत थी जो कम होने की बजाय बढ़ती जा रही थी। उसे रह रहकर मोहतशम का सुंबल अब्बासी और मलक सुल्तान के बारे में पूछा गया सवाल डिस्टर्ब कर रहा था। वो कई बार सोच चुकी थी कि बाबा से उस बारे में पूछे, मगर फिर खुद की सोच की नफ़ी करती घर वापस आ गई थी। मोहतशम इब्राहिम इस केस को ज़रूर पाया तकमील तक पहुंचाएगा, नबिया को यकीन था। वो शावर लेकर खुद को फ्रेश करती बाहर आई तो अल्हान ऑफिस से आ चुका था। आज जल्दी आ गए? नबिया ने बालों को टॉवल से रगड़ते हुए मुस्कुराकर अल्हान से पूछा, जो गर्दन चुकाए सेल पर कुछ टाइप कर रहा था। तो वापस चला जाऊं क्या? वो अक्खड़ लहजे में कहता सेल बेड पर उछालकर ड्रेसिंग रूम में घुस गया। इसे क्या हुआ? वो लंच साथ ना करने पर खफा है। वो खुद ही अल्हान की खफगी का अंदाज़ा लगाकर मुस्कुराती हुई बाल ब्रश करने लगी। कुछ देर बाद अल्हान चेंज करके बाहर आया और बालों को ब्रश करके स्टडी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मिस्टर मलिक, नबिया की पुकार पर वो पलटे बगैर रुका। नबिया मुस्कुराती हुई उसके सामने आ खड़ी हुई। खफा हो मिस्टर मलिक? वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। नहीं, लठमार जवाब आया। फिर क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है अल्हान, मैं नोट कर रही हूँ। तुम मुझे अवॉइड करने लगे हो। पूछ सकती हूँ क्यों? और तुम मुझे धोखा दे रही हो। पूछ सकता हूँ क्यों? वो ज़बान से नहीं, दिल से हम कलाम हुआ। क्या बात है अल्हान? नबिया उसकी खामोशी पाकर फिर से बोली। कहा तो है कुछ नहीं है, तुम्हारा वहम है। हटो सामने से, मुझे स्टडी में कुछ काम है। अभी ऑफिस से काम करके ही आए हो, कुछ देर मेरे साथ भी बैठ जाओ। और तुम्हें याद है हमें कितने दिन हो गए हैं एक साथ बैठकर बातें किए हुए? क्यों, अपने बॉयफ्रेंड से बातें करके दिल नहीं भरा जो मुझसे भी करने की ख्वाहिश हो रही है? शातिर औरत, वो दिल ही दिल में बुड़बुड़ाया। अल्हान, नबिया उसकी खामोशी पाकर फिर से पुकारती उसके करीब हुई। व्हाट्स रॉन्ग? वो अल्हान के सीने पर हाथ रखती परेशानी से बोली। अल्हान का रवैया उसके लिए हैरानकुन था। नथिंग रॉन्ग, फिलहाल मेरा मूड बातें करने का नहीं है, तुम म्यूजिक सुनकर एंजॉय करो। वो अपने सीने पर धरे नबिया के हाथ हटाता साइड से होकर स्टडी में चला गया। पीछे नबिया अपनी जगह पर साकत सी खड़ी थी। क्या मोहब्बत करने वाले इतनी जल्दी बदल जाते हैं? वो खड़ी अफसुर्दगी से सोच रही थी। आदतें जो डाल के तवज्जो की, लोग जो यूं बदल जाते हैं, सितम ढाते हैं। ठीक 2 दिन बाद अहमद सियाल तस्वीरों का पैकेट लिए मलक सुल्तान के ऑफिस आया था। मलक सुल्तान ने पैकेट उठाकर खोला और उसमें मौजूद 5 से 6 तस्वीरों को बाहर निकाला। हर तस्वीर को देखते हुए उनके तासुरात ढीले और पुरसकून होते जा रहे थे। सारी तस्वीरें देखने के बाद उन्होंने सर के इशारे से सियाल को बैठने का इशारा किया। अहमद सियाल इशारा पाते ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। जी मलक साहब, ये मोहतशम इब्राहिम पर पर्सनल अटैक है सियाल। उसके बाद हम उसकी बैड बुक में शामिल हो जाएंगे और वो यकीनन इन तस्वीरों के बैग तक जाने की कोशिश करेगा। आपने बजा फरमाया कि हम उसकी नज़रों में उसकी बैड बुक में आ जाएंगे।
मगर ये तस्वीरें सिर्फ अल्हान साहब तक जानी चाहिए, इससे आगे नहीं। फिर ही हम खुद को कवर कर सकते हैं, क्योंकि पहले जो तस्वीरें थीं वो बिल्कुल सच थीं, जिन्हें मोहतशम इब्राहिम खुद भी नहीं जुटला सकता था। और स्कैंडल अफेयर के मामले से वो कोसों दूर है, जो उसकी एक अच्छी खूबी है। अपनी इज्जत सभी को प्यारी होती है मलक साहब। वो कुछ नहीं कर पाएगा हमारे खिलाफ, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं होगा। इस सब के पीछे हम हैं, क्योंकि अल्हान साहब अगर नबिया अब्बासी को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे तो शक की बिना पर, वो शक जो उन्हें नबिया मैडम के करैक्टर पर है, और ये शक जिस बंदे के साथ है वो है मोहतशम इब्राहिम। मोहतशम इब्राहिम तक अगर गई भी तो ज़ुबानी कलामी बात पहुँचेगी कि अल्हान मलिक ने नबिया अब्बासी को तलाक दे दी। क्यों दी, ये भी शायद वो जान जाए। और और अगर वो हमारे पास सबूत मांगने आया तो हम उसे वो तस्वीरें दिखाएंगे जो सच थीं, और 4 दिन पहले की रेस्टोरेंट में मुलाकात की तो अल्हान साहब खुद गवाह हैं। और तीसरा, नबिया मैडम ये सब किसी के भी इल्म में लाए बगैर कर रही हैं, सो हम पर किसी शक या इल्ज़ाम की तुक ही नहीं बनती। सियाल पुरस्कून सा बोला, हूँ, पर हाशिम वो जवाब तलबी नहीं करेगा मुझसे। अल्हान से करेगा, मगर हमें अल्हान साहब को इस हद तक हाइपर कर देना है कि किसी की बात इन पर कोई असर ही ना करे, और ना ही वो कोई बात सुनने को तैयार हूँ। बाकी हाशिम साहब को आप नरमी से हैंडल कर लीजिएगा, हमारा काम तो हो ही चुका होगा। वो मकरू सा मुस्कुराया। मगर ज़रूरी तो नहीं कि अल्हान फट से इस लड़की को डाइवोर्स दे दे। मलक साहब, अल्हान साहब को किस तरह इस हद तक ले जाना है कि वो नबिया अब्बासी को छोड़ दें, ये तो आप ही बेहतर जान सकते हैं। वो मुअद्दब सा बोला, हूँ, ठीक है, सोचता हूँ कुछ। मलक सुल्तान ने कनपटी मसलते हुए कहा, मुझे पहले ही इस फसाद की जड़ लड़की को अपने बेटे की ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहिए था। वो माथे पर उंगली रगड़ते सोच रहे थे। मलक साहब, चंद मिनट की खामोशी के बाद अहमद सयाल ने पुकारा, हूँ। वो चौंक कर उसकी तरफ मुतवज्जो हुए। मलक साहब, अब की बार ये तस्वीरें झूठी हैं, मगर इन तस्वीरों की बेस पर ही अल्हान साहब नबिया मैडम के ख़िलाफ़ कोई डिसीजन लेंगे, और हमें ये तस्वीरें अल्हान साहब को दिखाकर स्पॉइल कर देनी है मलक साहब। अहमद सयाल ने शातिर अंदाज में याद दहानी करवाई। हूँ, तुम फिक्र मत करो, मलक सुल्तान ने पुरसोच अंदाज में हनकारा भरा। जी। अहमद सयाल रिलैक्स होता मलक साहब से इजाज़त लेकर ऑफिस से चला गया।